Very good. पाकिस्तान का तो बहुत शुक्र करें. Yeah. Okay. We are live now, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am General Harun Aslam, retired, and I welcome you on behalf of Iqbal Institute of Policy Studies for a live webinar titled Revitalizing the Agriculture Sector of Pakistan. First of all, I'll just take a minute or so to talk about Iqbal Institute of Policy Studies. It is an independent research institute with a mission to generate, track, and advocate public policies towards achievement of sustainable development in Pakistan. In addition to taking on research projects for policy advocacy, IPS has embarked upon the concept of swift research, wherein it undertakes time-bound research and compiles a series of reports for the attention of policy and decision makers. Today, we are, as I mentioned, that we are going to touch upon the agriculture sector. This sector is considered an indispensable part of Pakistan's economy. Apart from contributing 19% to the national GDP, the sector absorbs 42% of country's labor force. However, the agriculture sector, mainly the farmers, are faced with various issues which have slowed down the sector's growth and performance. मैं यहाँ ये भी जिक्र करता चलूँ कि हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, तो जो हमें सुन रहे हैं वो भी अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहें सवालात की शक्ल में, तो यू कैन सेंड इन उर्दू और इंग्लिश बोथ. मैं अभी अपने पैनल से इंट्रोडक्शन आपका कराता हूँ. सबसे पहले डॉक्टर यूसुफ जफर तमगाए इम्तियाज, ये हैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ PARC. he is a prominent international Pakistani scientist having an over 35 years experience in agri-biotechnology research in Pakistan. और इसके बाद हमारे पास हैं राबिया सुल्तान, ये हमें लाहौर से ज्वाइन किया इन्होंने. He is a farmer and is a rather accomplished farmer and has achieved professional expertise in the field of farming. He is president of the Farmers Association of Pakistan, which makes her an expert in this field. He also had held very numerous prestigious designations in the past. इसके बाद हमारे पास डॉक्टर शुजात अली, he is member of advisory board of Iqbal Institute of Policy Studies. ये former bureaucrat हैं और ये special secretary finance रहे हैं. He has joined us from Lahore. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लाइट नहीं आपके फेस पे आ रही, इसको जरा देखिएगा, हम आपको देख सकें ताकि. ओके. एंड देन वी हैव डॉक्टर खाकान हसन नजीब. He has joined us from Paris, and he is a senior economist and a public policy expert with experience in economic policy making, fiscal management, regulatory, corporate and investment, climate reforms, economic growth and development for almost 2 decades. ये हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है और the panel will speak for 15 minutes, followed by a question and answer session. And then we'll request you, after the Q&A session, we'll request you for concluding remarks. First of all, I would invite Dr. Shujat Ali, and he is going to speak on role of agriculture in the resuscitation of economy of Pakistan. Dr. Saab, floor is yours, please. Thank you, sir. Thank you, General Harun Saab. It's an honor and privilege to be a part of this panel. Sir, I will start by saying that I am also a part-time farmer. I've generally been following agriculture over the years, but not as much as I should because of my other preoccupations. But certainly, over the last couple of months, after seeing certain pieces on agriculture in the media, I've been really very, very distressed about the state of agriculture in Pakistan. I will refer to an article which really hit me very hard. It was by Dr. Hafiz Pasha on the 1st of December 2020. It was titled Plight of Agriculture. I have known Dr. Pasha as an economist. He's one of our leading economists over the years. He's not an agricultural expert. He's a macroeconomist.
by the nature of his expertise. And when I saw his article on agriculture, I said, well, let me read it. What has Pasha Saab to say about this? This is, I mean, a man of his stature taking agriculture this seriously means something is wrong with agriculture in Pakistan. And then when I read through the article, it further added to my concern and state of anxiety. Now, what he says is, I'll just briefly, reading his article, one gets a sense that Pakistan's agriculture is almost nearing, I'm going to deliberately use this word to magnify the extent of the challenge, is nearing collapse in Pakistan. To give you a background, is Pakistan, since our independence, has been a very important pillar of our economy. It was almost 53% of the total GDP in 1947. But over the years, and it was the sector which was sustaining growth, playing a very big part in sustaining growth of the overall economy. Although its share has declined to 19% presently, it used to be around 20% for the last 15, 20, 25, 30 years. And it used to contribute more than its share towards the overall growth of the national economy. Now, just to lay the context, we were doing very well in the 60s when I'm going by decades. In the 60s, that was the Green Revolution decade. We were doing very well. The agricultural sector grew at the rate of 5.1%. The 70s was a bad decade, less than 3%. In the 80s, we grew at the rate of, in agriculture sector grew at the rate of 5.4%. The 60s was Green Revolution. The 80s was commissioning of Tarbela Dam, and a very important development, a breakthrough in cotton varieties. We had a new cotton variety which almost doubled our performance for cotton. The 90s, the agriculture sector grew at 4.4%, and that again was a decade favorable to agriculture from the policy point of view, and it had a very significant pro-agricultural policy in that period. Since the beginning of the millennium, agriculture is sort of in a state of neglect. The first decade our growth was around between 2.6% and 3%, depending on, adding the year here and there at the beginning or the end. And now this closing decade, from 2010 to 2020, we are growing agriculture has grown at 2.2%, the lowest decadal growth in our history. And the most worrying aspect of, if you link it, there's something in economics, there's something called the Malthusian trap. Malthus was a well-known economist of the 19th century, early 19th century, classical economist. And this trap is attributed to him. He at that time, when technology had not really made its presence felt in the world, he had the sense that ultimately, given the nature of production and productivity at that time in history, the growth in food production will be outstripped by the growth in population. And for him, that was a very, very dismal prospect. However, he was proven wrong because of subsequent technological developments in all fields of endeavor, but also in agriculture. Science-based agriculture took hold, and then Malthusian fears went into the background. But in Pakistan today, that Malthus is once again has become relevant to Pakistan because our rate of agricultural growth has been overtaken by the rate of population growth.
पॉपुलेशन 2.4% पे ग्रो कर रही है और एग्रीकल्चर जो है वो 2.2% का रिकॉर्ड है ओवर दी एवरेज के ऊपर लास्ट डेकेड के ऊपर। तो इसको देखें तो वी आर नो लॉन्गर ए फूड सस्टेनेबल कंट्री। अगर इस रिकॉर्ड को हम देखें एंड वी डू नॉट डू एनीथिंग टू चेंज दिस सिनेरियो, then we are in terms of providing food, agricultural sort of products to our population. We are, we can't sustain this this process over time. So ये सबसे बड़ा concern जो crisis हमारे लिए in terms of food security का एक crisis जो है that is looming, it's almost over our heads now. In addition to food, agriculture also is a very important source of inputs to other sectors of the economy. And Pasha Saab puts it very well in his article. He says agriculture has huge backward and forward linkages. Agriculture has linkages with textiles. It's one of the most important linkages is with textiles. Then the sugar industry relies on agriculture, tobacco relies on agriculture, food and beverage relies on agriculture. And this is, and in terms of our export performance over this period, a very important, in addition to the direct exports of agriculture, and we are no longer net, this is again a very distressing fact over the state of agriculture. Based on our performance over the last 10 years or so, we are no longer a net exporting country. We have become a net importing country for the first time in history. Again, this very hard-hitting fact that bothered me a lot. For the first time in our history, we will be importing simultaneously sizable chunks of our three major crops. We will be importing sugar this year. We will be importing wheat, which we had, really patted ourselves, when we had celebrated this thing, with fanfare at times, that, turn of the century, we had become a wheat surplus country, wheat self-sufficient country. And we will be importing wheat this year at a sizable cost of about, I think it is $2.5 billion, a very, very heavy burden on our balance of payments, our foreign exchange resources at a time when we are generally need a lot of foreign exchange to carry out our activities in other sectors, other growing sectors. So this is the scenario. And agriculture, and one of the reasons I think others will have, our panelists will have they will talk about this. They will in their discussions and presentations. The reason that my reading of the literature, the reason why we have fallen into this state of despair regarding agriculture is because of this is a very, very serious issue, a policy neglect of agriculture. Policy neglect, not giving due policy respect to agriculture as it is deserved, given its role in the overall economy in terms of other sectors and also in terms of its contribution. Most population lives in the rural areas and most of them are poor. And in terms of poverty reduction and food security, that policy neglect is perhaps one of the major reasons why we are where we are with regard to agriculture. The policy framework of the first decade of this present century prioritized the services sector. The priority was given to telecommunications, it was given to finance, and it was also given to industry. I'm talking of the period, let's say, up till 2007, 2008. Finance did very well, telecommunications did very well, industry did well in spurts, but then it was those were, I said, spurts. It was not that growth performance was not sustainable. Again, in the similar policy neglect
characterizes the decade from 2008 to 2008 to 2020, 2010 to 2020, and this is a period that when we have heard, we have seen again a very high priority to infrastructure with focus on highways, with focus on metro buses, electricity infrastructure. Again, much needed, but perhaps an excessive focus on this aspect of our economic infrastructure. That was what characterizes that period. So this is essentially a period where agriculture was a residual. It was no longer, it was handouts to agriculture. When you talk of, no effort to build institutions, no effort to build a robust policy framework that with an eye to the future, an eye to the challenges regarding food security and poverty reduction was evident in this period. So this is what briefly is the state of agriculture now. And if we are to break out of this cycle, it's become a vicious cycle. If you don't give attention, things get worse, and then that worsening situation feeds into the whole system, and so on. It sort of feeds on itself. If we are to get a breakthrough, then we need big, bold thinking. Business as usual is not the answer. We need radical thinking in terms of diagnosing the ills of agriculture and then finding bold solutions. Some people have talked in their media articles of in terms of a solution. In terms of big thinking is not something which can be done with a small committee or routine meetings. People have suggested some sort of an emergency commission, given the nature of the emergency, to deliberate and debate a total overhaul of the agricultural sector with a long-term, the short-term, medium-term, and long-term plan, and an effort to consistently pursue that whatever program comes out of those deliberations. So this is briefly, sir, this is what I have to say. A lot more to say, but I think this kind of sets the context, and then other distinguished panelists can pick on some of the things that I have touched upon, and we look forward to further enlightenment from. Okay, thank you. Dr. You said it that you have set the stage for further deliberation. What is the state of affairs? You talked about the policy neglect. That meant that, we have relegated the agriculture sector to lower priority, and for the last decade or so, or maybe more. And then you mentioned that, the basic commodities are sugar and wheat, and we are going to import both. What is the agriculture sector doing? We are an agrarian country, and this is something which is, we are going to spend $2.5 billion on an import of wheat alone. So this is, and you also mentioned that as our population grows more than 2%, so our agriculture is also something parallel to 2. So that means that we are nearing the collapse. That's what we quoted the Vice Pasha. So the situation is dismal, but then let's see. Now I would request Ma'am Rabia Sultan. She's going to talk about the problems or the challenges of the farmers. So let's have from the farmer. थैंक यू वेरी मच जनरल हारून साहब. मैं बहुत मशकूर हूँ इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ की कि आपने मुझे मदऊ किया और काश्तकारों की जो मसाइल हैं और मुश्किलात हैं उनको सुनने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया. मैं आपकी मशकूर हूँ. और डॉक्टर शुजात अली साहब ने बिल्कुल सही गुफ्तगू की, और मैं भी पॉलिसी से ही थोड़ा सा शुरू करूँगी कि हमारा मसला क्या है एग्रीकल्चर में,
اور وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری سکسیسو گورنمنٹس کا، یہ 10 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ پچھلے 30 سال کی کہانی ہے. 10 سال از ٹو شارٹ اے پیریڈ کہ ہم اس کو کہیں کہ 10 سال میں ہمارا تباہی کا ذمہ دار ہیں. یہ 10 سال 3 ڈیکیڈز کی یہ کہانی ہے اور سکسیسو گورنمنٹس کے نگلیکٹ کی کہانی ہے. Our point of focus was somehow shifted from agriculture to something completely else, which is manufacturing, which is something else. جب آپ پاکستان کا نقشہ دیکھتے ہیں اور جب آپ پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ we have fertile alluvium plains, we have Indus Basin, ہمارے پاس 4 موسم ہے، ہمارے پاس ہر قسم کا خطہ ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہیں. تو ایک ایسا ملک جس کا نقشہ سامنے رکھیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں 30 سال سے ہم آؤٹ آف فوکس کیوں ہو گئے. اور اس میں ہماری جو پالیسی تھی وہ زراعت فرینڈلی کیوں نہیں تھی، کیونکہ ہمارے جو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم، لیکن جو ہمارے حکمران تھے ان کا انٹرسٹ زراعت میں نہیں تھا. ان کا انٹرسٹ تھا when we needed waterways, we were making motorways. When we needed infrastructure for farm to city infrastructure, ہم نے بڑے بڑے لاہور شہر کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. آئی ایم نتھنگ اگینسٹ دیٹ، لیکن جب تک آپ کاشتکار کو انفراسٹرکچر نہیں دیں گے، ہماری آج بھی گندم جو ہے ہمارے پاس اسٹوریج فیسلٹیز نہیں ہے. آج بھی کاشتکار ڈسٹریس گندم کی سیل کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارا ہارٹیکلچر جو ہے اس میں ہمارا مینگو ہے، کنو ہے، جو سبزی ہے وہ اونے پونے کاشتکار کو بیچنی پڑتی ہے بیکاز دیر از نو ویلیو چین فار آر ہارٹیکلچر پروڈکشن. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن ممالک نے ان پر کام کیا، دیر از نو راکٹ سائنس، جنہوں نے اس کے اوپر سسٹینڈ اور سسٹینیبل ایفرٹس کی، وہ ملک جو ہے آج ان کی ایگریکلچرل جی ڈی پی جو ہے 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 10 ہے. ہم نے تو فوکس ہی نہیں رکھا کہ ہم نے 5% یا 6% پہ اپنی ایگریکلچر جی ڈی پی کو گرو کرانا ہے. ڈاکٹر شجاعت نے بالکل صحیح کہا، پاپولیشن ہماری 2.4 پہ گرو کر رہی ہے اور ایگریکلچر گروتھ ہماری 2 پہ آ گئی ہے. تو یہ تو کسی نابینا کو بھی آپ بتا دیں گے تو وہ کہے گا کہ سم تھنگ از ڈیفینیٹلی رانگ اینڈ سم تھنگ از ناٹ ورکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اٹ از ناٹ جسٹ ایگریکلچر پالیسی. میں آپ کو بتاؤں کہ 1988 میں سرتاج عزیز صاحب نے نیشنل ایگریکلچر کمیشن کی اتنا بڑا ڈاکیومنٹ بنایا، اٹس اے بائبل فار ایگریکلچر پالیسی. امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کے بعد 1991 میں ایک پالیسی آئی، 2004 میں آئی اینڈ سو آن سو فورتھ. 2018 میں پنجاب نے ایک ایگریکلچر پالیسی بنائی. اٹ از دی امپلیمنٹیشن آف دا پالیسی وچ ہیز آلویز بین اے چیلنج. باتیں تو سب نے بڑی اچھی کی ہیں، باتیں تو ہم سب بڑی اچھی کریں گے، لیکن جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گی، جب تک مریض کو پرسکرپشن کی دوائی اس کے پیٹ میں نہیں جائے گی، اس کو آرام نہیں آئے گا. جہاں جو آتا ہے وہ پرسکرپشن لمبی سے لمبی لکھتا ہے، فصیح و بلیغ انگریزی میں باتیں لکھ کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ کسی ہمارے کام کی نہیں ہوتی. Now coming to the challenges، دوسرا ہمارا جو پچھلے 30 سالوں میں المیہ رہا ہے وہ انسٹیٹیوشنل فیلئر کا مسئلہ رہا ہے. ہمارے 20 ادارے ہیں جس میں ریسرچ کے ادارے ہیں جو زراعت کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ان کی اسٹرینتھنگ ہی نہیں ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو کاٹن کا ڈیبیکل اس وقت ہوا ہے، جو ہم 14 ملین بیل سے اور 6 ملین بیل پہ آ کے کھڑے ہو گئے، وہ از اے گلیئرنگ ایگزامپل کہ ہم نے کپاس کے ساتھ، بیکاز ہماری اکانومی آج بھی کپاس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اٹس اے مونو کراپ اکانومی. اور اس اکانومی جس فصل پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے جو پریمیئر ریسرچ کا ادارہ ہے وچ از دا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس مین پاور ہائر کرنے کے پیسے نہیں ہیں. وہ ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے ریڈنڈنٹ. کیونکہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کو جب ہماری ڈیولوشن ہوئی اور ہم نے منفال تھی منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر لائف اسٹاک سے جب ڈیوالو ہو کے فوڈ سیکیورٹی میں آئی، تو کسی نے سوچا ہی نہیں کہ کپاس کا کیا ہوگا، بیکاز کپاس فوڈ سیکیورٹی میں نہیں آتی. پہلے منسٹری آف کامرس کو دے دی، پھر منسٹری آف ٹیکسٹائل کو دے دی. سو اٹ واز اے فٹ بال بٹوین منٹیکس، منسٹری آف کامرس.
जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बेयारो मददगार एक सेक्टर बन गया। फिर प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि जी हम इसको टेक ओवर करते हैं और हम इसको चलाते हैं और हम इसमें ऐसा रॉकेट साइंस लगाएंगे कि क्या ही बात है। उन्होंने इसकी फंडिंग बंद कर दी। वो कैसे बंद कर दी? अब ये वो बातें जो सबको पता है लेकिन कोई इसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। अब पर कॉटन बेल एक सेस दिया करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच इज 50 रुपीज। अगर 36-27 हजार की एक कॉटन बेल है उसमें 50 रुपए पर बेल वो टैक्स देती है। वो उन्होंने 2016 से देना बंद कर दिया। उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि उस इदारे की फंडिंग बंद हो गई, आपकी कपास में रिसर्च बंद हो गई। जिस अफसर को तनख्वाहों के लाले पड़ेंगे वो क्या रिसर्च करेगा? तो आज हम 6 मिलियन बेल पे अल्लाह के फजल से आके अपनी हरकतों की वजह से खड़े हो गए हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? काश्तकार का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। जब हम जिस जिस वक्त काश्तकार का नुकसान हुआ है उसका तो हुआ है, लेकिन इस मुल्क का नुकसान हुआ है। जब इस मुल्क में गंदम 25 मिलियन टन से कम पैदा हुई है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। We have to think food security is security of Pakistan. असलहा तो बाद में चलेगा, जंगें तो बाद में लड़ी जाएंगी। हम रशिया को देखें, सुपर पावर थी, उसका हशर क्या हो गया था? दे वर सेलिंग देयर ब्रेड एंड बटर एंड व्हाट गॉड नोज, हर किस्म का असला बेच के तो वो अपने दाने पूरे कर रहे थे। तो हम पता नहीं किस फूल्स पैराडाइज में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये सब काम चलता रहेगा। ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। 30 साल का निगलेक्ट है। अच्छा, फिर दूसरा अलमिया इस निगलेक्ट का, ये जो इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रही हूँ, हमारा देयर इज अ सीरियस डिस्कनेक्ट बिटवीन द एकेडेमिया, बिटवीन रिसर्च एंड बिटवीन एक्सटेंशन। ये 3 इदारे हैं जिन्होंने इवेंचुअली फार्मर के लिए काम करना है। अब जो यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है एकेडेमिया में, उससे रिसर्च वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। जो रिसर्च में काम हो रहा है वो एक्सटेंशन वाले को नहीं पता। इवेंचुअली जो कुछ इन साइलोज में हो रहा है वो फार्मर तक नहीं पहुंच रहा। जब तक हम इनको रीलिंक नहीं करेंगे, और जब हमारी लायलपुर यूनिवर्सिटी, आई वुड रिफर इट एज लायलपुर यूनिवर्सिटी एंड नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, बिकॉज ये बड़ी पुरानी कहानी है। जब ये 60s में इसको हमने इस मॉडल को बदला और हमने डीलिंकिंग कर दी ऑफ रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एकेडेमिया, वहीं से हमारा नुकसान शुरू हो गया। हिंदुस्तान में उन्होंने अभी तक वो इस मॉडल को कहते हैं लायलपुर मॉडल, एंड व्हेन यू गो टू लुधियाना यूनिवर्सिटी दे आर स्टिल फॉलोइंग दिस मॉडल, एंड दैट इज द रीजन कि फार्मर्स को वहाँ डायरेक्ट सीड जो है हर साल गंदम का लुधियाना यूनिवर्सिटी से मिलता है। हमारी यूनिवर्सिटी प्रीमियर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, उसका 3 साल से वाइस चांसलर का ही फैसला नहीं हो रहा। आप ये देखिए ना कि जब ये इस किस्म की चीजें हो रही होती हैं तो नुकसान किसका हो रहा होता है? उस इदारे का। जब एक रडरलेस इदारा हेडलेस चिकन की तरह बैठ जाएगा तो वहाँ क्या रिसर्च होगी, क्या काम होगा, क्या उसकी ओनरशिप होगी इदारे की, जब वहाँ का कोई लीडर ही नहीं है? बगैर लीडरशिप के तो काम होता नहीं है। Coming back to this policy, we have to have an implementable policy. हमें एक अपना 10-15 साल का रोड मैप बनाना है। यहाँ बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, मैं बिल्कुल इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और ना मैं उस टर्फ पे बात करूँगी, लेकिन हमने एक सस्टेन्ड ग्रोथ मॉडल बनाना है। 4% हमें अगले 10 सालों में, अगर हम अपनी 4 से 5% ग्रोथ करेंगे तो कोई हमारी बचत है, अदरवाइज देयर इज नथिंग, देयर इज नो मैजिक। काश्तकारों के मसलों पे हम आ जाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जी हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, पर एकड़ हम अपनी यील्ड बढ़ाएं। एक हमारा नेशनल यील्ड है, एक हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर की यील्ड है, उसमें इतना गैप है। हमें किसी और मुल्क से तकाबुल करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोग्रेसिव फार्मर की यील्ड जो है वो नेशनल यील्ड से, उसमें बहुत आधो आध का फ़र्क है। तो हमने तो सिर्फ अपने प्रोग्रेसिव फार्मर की यील्ड को, यानी अगर मैं गंदम की बात करूं तो हमारा जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो 4.6 टन पर हेक्टेयर ले रहा है और नेशनल एवरेज यील्ड 2.6 है। 43% का गैप है। And this is the backbone of this country. This is the food autarky of this country जिसकी मैं बात कर रही हूँ। हम 25 मिलियन टन से हमें ज्यादा गंदम पैदा करनी है।
تاکہ ہم لوگوں سے نہ مانگتے پھریں, کیونکہ ہمارے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے to beg for wheat and to borrow for wheat. We don't have that luxury. تو اچھا, اس کے بعد اس کے کرنے کے لیے ہمیں اب 1960 کی جو دہائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, پوسٹ گرین ریولوشن چیلنجز آنے شروع ہو گئے, ہماری زمینوں کے حالات بہت ناگفتہ بے ہو گئے, آرگینک میٹر اس میں نہیں رہا, ہم نے کیمیکل فرٹیلائزر استعمال کر کر کے اپنی زمینوں کی پروڈکٹیوٹی تباہ کر دی ہے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ریڈیکل اباؤٹ انکریزنگ دی آرگینک میٹر ان آر سوئلز, بیکاز جب تک ہم اس کو نہیں امپروو کریں گے ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر نہیں ہوگی. اس کے لیے ہمیں اپنی پریکٹسز کو بدلنی ہے, جس کے لیے ہمیں میکنائزیشن کی ضرورت ہے. میکنائزیشن از a serious challenge for agriculture. By mechanization, generally we mean tractorization. Tractorization is not mechanization. ہمیں امپلیمنٹس چاہیے, اپنے چھوٹے فارمر کے لیے امپلیمنٹس چاہیے. ہم نے اپنی, اگر ہم آئل سیڈز کی فصلیں اگانا چاہ رہے ہیں, کئی سالوں سے حکومتیں پروگرام چلا رہی ہیں آئل سیڈز, بلینز آف روپیز ہم یہ انفیریئر کوالٹی پام آئل امپورٹ کرنے میں ہمارے خرچ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو ڈیوٹی سٹرکچر پام آئل کا کیا ہوا ہے, اس سے ہماری کپاس کی پرائس بھی ڈپریس ہو رہی ہے, اس سے ہماری آئل سیڈ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. وی ہیو ٹو ری وزٹ دیٹ پالیسی کہ ہم نے کب تک دوسرے ملک کی اکانومی کو اپنے خرچے پہ اپنے کندھوں پہ چلانا ہے. ہمیں میکنائزیشن کی ضرورت ہے. ہمیں آپ مشینری اس وقت دیکھ لیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, آپ کو ہندوستان میں چھوٹے فارمر کے لیے بہت ساری مشینری مل جاتی ہے, پاکستان میں آپ کو نہیں ملتی. اسٹینڈرڈائزیشن آف دیٹ مشینری, کوئی مشینری گجرانوالہ میں بن رہی ہے, کوئی ڈسکا میں بن رہی ہے, کوئی کہیں بن رہی ہے, 100 قسم کے وینڈرز ہیں, اس کی کیا کوالٹی ہے, وہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کی ایکریڈیشن کر رہا ہو. یہ وہ چیزیں جو ہم نے زراعت کو اگر جدید خطوط پہ استوار کرنا ہے خطوط پہ, تو ہم نے یہ سب کام کرنے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک پلاننگ کمیشن میں, آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے کئی 5 ایئر پلانز بنائے, اور وہی 5 ایئر پلانز لے کر کوریا میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور ہم نے ریورس گیئر لگا لیا. تو نہ ہمارے پاس ذہن کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے, نہ محنتی لوگوں کی کمی ہے, لیکن ہمارے پاس کمی ہے تو اس پولیٹیکل ول کی کمی ہے, اس فوکس کی کمی ہے, جس کو ہم نے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جو ہے نا, وہ اس وقت زراعت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو نہ ایسا کوئی مینوفیکچرنگ آپ کے ملک میں ہو رہی ہے, نہ کوئی اور کام ایسا ہو رہا ہے. نہ ہم نے اپنے اچھا, پھر ہم جب زراعت پہ آتے ہیں تو ہمارا جو فارمر ہے اس کے پاس کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے. جس یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ گاؤں میں, دیہات میں, میرا دیہات سے تعلق ہے, میٹرک پاس کر کے بچہ آ جاتا ہے, جی مجھے نوکری لگوا دیں. میں کہا بیٹا میٹرک پاس کو تو نوکری نہیں ملتی, تم اپنی جو زمین ہے اس پہ کام کرو. وہ کہتے ہیں جی میں کیا کام کروں, وہاں تو میرے والد صاحب اور چچا پہلے ہی کام کر رہے ہیں, ان کی پوری نہیں پڑھی تو میں. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ employable education for rural youth. We need to create agri entrepreneurs in the villages. جس کی آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی تھی, جو یہ اربن ایریاز میں سلمز بن رہے ہیں, یہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ شہر ڈیولپ ہیں, یا ہیلتھ ہے, یا سڑک ہے, یا روشنی ہے. دیہات میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے دیہات رورل کریکولم میں سے ایگریکلچر کو ہی نکال دیا ہے. سو وی نیڈ ٹو ریسٹارٹ, وی نیڈ ٹو اس بچے کو اس ایگریکلچر میں, اور جو دنیا میں زراعت ہو رہی ہے, ہم ایریاز بنائیں جدھر ہم ہائی ویلیو کراپس لگائیں, چلیز لگائیں, انینز لگائیں, اس کی پروسیسنگ لگائیں. ڈسٹرکٹس کو ہم مختص کریں کہ جی یہ چلی ڈسٹرکٹ ہوگی, یہ انین ڈسٹرکٹ ہوگی, یہ مینگو ڈسٹرکٹ ہے, یہ کنو ڈسٹرکٹ ہے, یہ فلانی ڈسٹرکٹ ہے. وی ہیو ٹو بی مور فوکسڈ. یہ کہہ دینا کہ جی وہ جو ہم ایک جنیرک پالیسیز اپنی جنیرک بنا رہے ہیں, اس سے اب کام ہمیں نہیں چلے گا. ہمیں اپنی ریسرچ پہ بہت توجہ دینی ہے, اور ہمیں اپنی جو یہ ہے اپنا فارمر کی, اچھا ایک اور فارمر کا کیا مسئلہ ہے, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن. فارمر کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. جس ریٹ پہ اس کو کھاد مل رہی ہے, جس ریٹ پہ اس کو بیج مل رہا ہے, جس ریٹ پہ اس کو ڈیزل مل رہا ہے, ہر 15-20 دن بعد, مہینے بعد ڈیزل کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, اس کی سارا بجٹنگ وغیرہ آؤٹ ہو جاتی ہے.
आउटपुट कॉस्ट पे उसका कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि वीट की भी प्राइस फिक्स हो जाती है, गन्ने की भी प्राइस फिक्स हो जाती है, उसका उस पर कोई इख्तियार नहीं है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वो है नहीं, एक्सपोर्ट के काबिल उसकी क्वालिटी, उसको पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट किस तरह करनी है। अगर चावल एक्सपोर्ट करना है तो उसका मॉइस्चर कितना होना चाहिए। गंदम की जब बारी आती है तो उसको फूड डिपार्टमेंट कहते हैं जी तुम्हारा तो मॉइस्चर 20% है, हम तो 16 पे लेंगे। ठीक है जी, अब वो कहाँ से 20 से 16 पे करेगा? कोई फैसिलिटी होनी चाहिए जिधर वो उसको मॉइस्चर को सुखाए और अपनी मार्केटिंग बेहतर करे। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, मार्केटिंग एक्सटेंशन हमारे पास नहीं है। काश्तकार को नहीं पता कि किस वक्त कौन सी जिन्स जो है उसकी बेहतर कीमत उसको मिल सकती है, तो वो तो डिस्ट्रेस सेल करता है। अच्छा, उसका मसला क्या होता है? क्रेडिट। अब हमारी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वो करीबन 1000 अरब रुपया है। फॉर्मल सेक्टर से और नॉन फॉर्मल सेक्टर यानी जो बैंक्स हैं वो तो उसको कैपेसिटी नहीं है। हमारा जो ज़राई तरक्याती बैंक है आज तक वो रिस्ट्रक्चर ही नहीं हुआ है, उसका बोर्ड ही नहीं अभी तक। तो आप ये देखें ना कि जो प्रीमियर ज़राई तरक्याती बैंक है जिसका काम ही तरक्याती एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, उसने क्या डेवलपमेंट करनी है जिसका बोर्ड ही नहीं होगा? वो भी एक रडरलेस हेडलेस एक इदारा इस वक्त बना हुआ है। सो वो उसका काम ही सिर्फ काश्तकार को क्रेडिट फराहम करना है। अच्छा, अब क्रेडिट जो फराहम कर रहा है उसका आप मार्कअप देखिए कि 13%, 15% पे कौन सी बिजनेस है जो वाइबल होगी। इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट क्रेडिट लाइंस होती हैं, ज़राअत के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब वो जाता है काश्तकार नॉन फॉर्मल सेक्टर जिसको हम कहते हैं मिडल मैन, आड़ती, जो भी उसको आप नाम दे दें, वहाँ जीरो डॉक्यूमेंटेशन है। ही इज चार्जिंग आर्म एंड अ लेग फॉर दैट क्रेडिट, नो डाउट, बट जीरो डॉक्यूमेंटेशन है। उसकी गमी खुशी हर चीज में वो आड़ती मौजूद है। आड़ती को पता है कि इस इंसान की 10 एकड़ गंदम है, 10 एकड़ कपास है, 20 एकड़ गन्ना है, ही नोज इसकी क्या कीमत है, वो उसको पैसे दे देता है। जब फसल काटने का वक्त आता है वो कहता है ये मैं तुमसे 100 रुपए डिस्काउंट पे लूंगा। द फार्मर हैज नो चॉइस। सो दिस इज डिस्ट्रेस सेल। और Please, we have got time constraint. I am extremely sorry because आपने एक इशू ऐसा छेड़ दिया है कि I am very passionate about it. मेरा ख्याल से मैं इसको इधर ही रोकती हूँ and let other speakers also talk about it. Thank you very Thank much. you very much. Thank you. I think you talked about farmers woes. आपने एक फार्मर को challenges क्या हैं? एक तो आपने प्रायोरिटी शिफ्ट का बताया, ये कैसे हुई। आपने बताया कि एकेडमिया और रिसर्च और एक्सटेंशन का लिंकेज ही नहीं है, फार्मर तक कुछ हो नहीं रहा। लाइलपुर का जो आपने बताया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रिमेंबर हम बच्चे थे तो सुना करते थे कि बड़ी वहाँ रिसर्च है और जबरदस्त इंस्टीट्यूशन था। पता नहीं क्या हुआ, किधर हमारा ये, हम किधर, वेयर डिड वी गो ऑफ ट्रैक। You talked about implementable policies, sustainable model होना चाहिए, mechanization implement for farmers, and then you talked about the political will. बात यह है political will की, लेकिन एक मैम बाद में बात करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आया, किसी ने भेजा कि ज्यादातर जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, वो लोग तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो who's going to bell the cat? तो उन्होंने क्या किया फार्मर्स के लिए, इस पे बाद में आपसे बात करेंगे। नाउ सर, डॉक्टर यूसुफ मिर्जा, सर फ्लोर इज योर्स। Thank you very much, Dr. Saab. First of all, I am grateful to this is Iqbal Institute of Policy Studies for providing me this opportunity to share some thoughts along with the experts. It is heartening to note that the think tanks in Pakistan, they are taking up the food security or agriculture issue. Recently, I attended webinar with CGSS 3 or 4 on cotton, on food security, on water, and same with IPI. Both are the big think tanks in Islamabad. So it's very heartening to see that the food security, as Rabia has said very rightly, that the collapse of Soviet Union, among other things, and also Eastern European countries, is because everybody of a family was standing in a queue, either for an egg, for a bread, or a beef, or a pork, because they were struggling, despite the fact that the Soviet Union had, at that time, 34,000
nuclear warheads. We are around 80 at this point of time. So this is the why food security is important. It is as important as of our strategic security as well as of our water security or health security for that matter. So Shujat Saab has very rightly, Shujat Saab has covered all the era in the decade form. We know, we talk a lot about green revolution. We know that the green revolution has not touched Africa, right? So it touched South Asia, Pakistan and India in such a great manner that our growth was at some time even touching 8% here. There was a mechanization at that time, which was true. We received tractors and we received threshers. So there was sort of a semi-mechanization started. Massey Ferguson started their manufacturing on Sheikhupura Road late in 60s, you know. So that was era. But we neglect one basic point, being a technology, that why impact of technology in agriculture, productivity, and lessons for Pakistan. In the first era, which we call Green Revolution, there was no barrier on technology of transfer. The USAID and the CIMIT, the CGIAR system of the World Bank, they were very liberal. Can you believe at that time 40,000 tons of Mexipark seed was developed in Mexico and shifted to Pakistan with the help of USDA. Their experts were coming. Norman Borlaug was a frequent visitor to Pakistan. There was a strong ownership by the ruling elites. Ayub Khan Saab, Malik Amir Muhammad and Khudabakhsh Bhutcha. They used to come on the radio and they were involved on a daily basis with the development taking place in the Green Revolution. And we were, this was a success story of Pakistan that in terms of technology, we adapted the new seed, we adapted the new chemical approach of fertilizer and pesticide, we adapted the mechanization, and we adapted the high irrigation system, in terms of canal and others, lining and other things. So what has changed? We know that the Green Revolution was based mostly focused on wheat and rice system. It neglected, for example, with USDA money. At this point in time, I would like to inform that I have one article published in, US. Unfortunately, since 50s till now, Pakistan agriculture is unfortunately thrown to the international donors. The government of Pakistan input in agriculture, since our history, it is IFRI, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. They have done the study with Melinda Bill Gates Foundation sponsorship, that the Pakistan is investing 0.18 of its agriculture GDP on research and development, which is the second lowest in the even SAARC countries. I presented this to Imran Khan Saab at Bani Gala, and he asked, who is the lowest? I said Bhutan, with a population of only 400,000. So even Bangladesh is double to us, 0.36. India is 0.4. China is 2. So look at their economy size and how much they are investing. So we should not expect miracle if you are dependent on JICA or ACIR or USDA or USAID for our agriculture. Madam, talk about University of Agriculture or Lalpur University. The whole campus was built by the USAID money, not by the government of Pakistan. Similarly, the Punjab campus, similarly the NARC, the 2,000 acres is all built by USAID. The plaque is there. So if you throw your own agriculture to the donors, so they have their own priority. Why we are importing the edible oil till today? $3.24 billion we have spent last year to import edible oil, because USAID money restrict, because of the soybean, because of the canola, that you cannot research on that. But who has stopped us not to invest by ourselves? So we didn't invest. This is the result that it is keep on increasing. So I will talk about some success stories. This is just the background. I will tell you that despite all these things, the technology, because my topic is impact of technology, I will tell you in the same era, in the Green Revolution, we
introduced through PIA shaver, the poultry industry is part of the agriculture. And now at this point of time, poultry industry is even surpassing the sugarcane industry, which is the largest after textile. Investment is more than 1,200 billion. This last year we produced 16 billion eggs. 16 billion eggs. And then you imagine that the poultry meat, despite so much input cost, is still the cheapest among the beef and the mutton and the fish. So it's still the cheapest. So we have a success story in poultry. The three pillars, the breeding, the nutrition, and the health management. So Pakistan made a lot of development in poultry industry. Similarly, we made, in Pakistan, you will be surprised to know that the Atomic Energy Commission, because they were working on some defense projects, laser rangefinders and others, they developed laser land levelers. So, and then it became, the Punjab government then spread it through services provider. And now laser land leveler is a very important tool in agriculture of Pakistan in making the land leveler and saving a lot of water, for irrigation purpose. May I add that all the water, sweet water is available to the country, 92% to up to 95% is being consumed only in agriculture. And our national water policy, when they make it, they neglect Ministry of Agriculture. Only 3 to 4% is used by domestic. And there is a lot of hue and cry about Karachi water supply and Lahore and Islamabad. But we neglect that the 95% user of 140 million acre feet of water, sweet water available to us is by agriculture, right? So I talk about at the same time another success story, which is honeybee. In early 70s, we replaced, our honeybee, which was, not like, containment. Though the APs, Europa, we imported by PARC. Last year, Pakistan exported 685 million worth of 68 crore या 70 करोड़ रुपए का हमने शहद बाहर एक्सपोर्ट किया. So this is a lot of development has taken. Pakistan is self-sufficient in honey. We are also exporting a lot of honey to the Saudi Arabia, Oman, Qatar, and Middle East countries, right? So this is another. Despite all the limitations, we did marvelous in the tunnel technology. Now in this severe winter, we are taking cucumbers. Khira har koi kha raha hai, and it's cheap. It's 40 rupees, 50 rupees kilo. So Pakistan made now 40,000 hectares are under tunnel technology. So I am talking about the impact of technology on agriculture, that how it can transform, this, you see the sweet paprika is available. इस सख्त सर्दियों में आपको टिंडे और आपको घिया, कद्दू और शिमला मिर्च, they are all available because of people in the private sector. Now, farmers, industrialists can put this industry in Bangladesh or in Middle East or in Africa, but जो हमारा farmer है, जिस तरह राबिया ने कहा, वो तो बेचारा पाकिस्तानी है, वो अपनी लैंड को छोड़ के कहाँ जाएगा? उसने तो इसी मुल्क में रहना है. तो उसको अपनी सर्वाइवल के लिए टू मेक ए स्ट्रगल, तो जो भी टेक्नोलॉजी है तो वो उसने उसको हासिल करनी है. अब सीड्स की बात की जाती है, टनल टेक्नोलॉजी के लिए खास सीड चाहिए. पाकिस्तान की सीड की इंपोर्ट 800 मिलियन रुपए से बढ़ के इस दफा पिछले साल 16 अरब को क्रॉस कर गई है. सीड विच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अब्रॉड. तो अब आप देखें, इसी में प्राइवेट सेक्टर ने जरा सी इंटरेस्ट लिया शहबाज शरीफ साहब के दौर में. तो मामू कांजन अगर आप जाएं तो युक्सल जो टर्की की सीड कंपनी है, उन्होंने वहाँ एक सिस्टम लगाया. उसमें कोई उन्होंने 24-25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, और उसमें मियाँ शौकत साहब का जाके फॉर्म देखें, इस माइंड बॉगलिंग कि मामू कांजन जैसे शहर में 5 जो हमारी टनल की सब्जियां हैं, टमाटो है, जिसमें आपका ये खरबूजा है, इसमें आपके करेले हैं, मिर्चें हैं और खीरा है, इसके सीड वो मुल्क में बना रहे हैं. ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि आप दे आर एक्सपोर्टिंग टू टर्की, टू जॉर्डन, टू रशियन फेडरेशन. So there's a lot of development has taken place. Another good point which has done, I told,
is how we are transforming the Pothoar Valley into the Olive Valley. ये शुरू तो यूबा के दौर में हुआ था, लेकिन बाद में उसको निगलेक्ट किया गया. 62-4 में सवात में शुरू किया गया था. और वैसे if you go to the history, तो even in the British time they made a map where Indo-Pakistan, the British India could grow, you know, the tea or olive or, you know, some like banana. ये banana भी introduced by Britishers in मीरपुर खास वगैरह में. ऑलिव में पिछली गवर्नमेंट ने 2.2 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया. पंजाब गवर्नमेंट ने 1.4 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया. 50,000 एकर्स विल बी कवर्ड बाय द ऑलिव ट्री. ऑलिव ट्री जो है वो 900 साल तक लगता है, 200 साल अपनी पैदावार देता है. इस दफा जो अच्छा काम हुआ इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, दे इंपोर्टेड द एक्सट्रैक्शन मिल्स आल्सो फ्रॉम इटली ऑफ द स्मॉलर साइज, और वो उन्होंने लगाई और फ्री एक्सट्रैक्शन करके दी. या अगर आपने 10 बोतलें निकाली हैं तो एक बोतल वो रखते हैं एज ए कॉस्ट. तो यू विल सी ग्रेजुअली वी आर ट्रांसफॉर्मिंग. पिछले साल हमने तकरीबन 100 टन, हम तकरीबन 1200 टन स्पेन से और मोरक्को से इंपोर्ट कर रहे हैं. तो वो इंशाल्लाह हमारा ये एम है कि नेक्स्ट 5 इयर्स तो पाकिस्तान जो एटलीस्ट जो इंपोर्ट करता है वो उसे नहीं करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इज अवेलेबल फ्रॉम चकवाल. आप उधर जाएं अगर बलूचिस्तान में लोरा लाइवल तहसील में, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो जोगजई फॉर्म पे यू फील लाइक यू आर इन स्पेन. तो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हैज डन, और उसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल रहा है इस सारे मामले में. अच्छा, इसमें देखें आप, स्ट्रॉबेरी मुल्तान तक स्ट्रॉबेरी लग रही है. PRC ने इंट्रोड्यूस की इन अर्ली 80s. रफान के साथ मिलकर उन्होंने जैम की फैक्ट्री लगाई फैसलाबाद में. वो there is now strawberry is become common. Similarly, when I became the chairman, we introduced kiwi in Pakistan. और वो हमारा जो शिंकियारी में एक फॉर्म है, वी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात कर रहा हूँ. वी ब्रॉट सम वैरायटीज व्हिच आर अडैप्टेड टू दिस एरिया. तो मानसेरे में हमने उसको डेवलप किया एंड वी प्रोवाइडेड द रूट स्टॉक टू 12 नर्सरीज. बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विद इन 5 to 8 years तो जो जितनी भी कीवी पाकिस्तान में होगी वो दिस इज ग्रोन इन पाकिस्तान, राइट. सो मैं ये बता रहा हूँ कि, और जिस तरह मैडम ने बात की है क्लस्टर्स की, तो क्लस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली बन गए हुए हैं. भलवाल और ये सरगोदे का इलाका किन्नुओं के लिए है, कुलरी का इलाका मिर्चों के लिए है, अनियन का इलाका जो बलूचिस्तान में है, इसी तरह लसबेला. वी हैव क्लस्टर्स विद अस. तो असल में बात यह है कि जो शुजा साहब ने कही, राबिया ने कही कि वाई, और जो हफीज पाशा ने अपने मजमून में लिखा, मैंने और खाकान ने मिलकर जो 3-4 मजमून लिखे हैं, तो वाई द डिसमल सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. देखिए, जो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि दुनिया बदल गई. दुनिया बदली 2 तरीकों से. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया बायोटेक रेवोल्यूशन. डॉक्टर महबूबुल हक ने अंडरस्टैंड किया कि हमने IT रेवोल्यूशन की ट्रेन मिस की है. बंगलौर हैज टेकन ओवर. आज दुनिया की जितनी बड़ी IT कंपनीज हैं उन सब के CEO और COO बोथ आर इंडियन ओरिजिन. तो हमने मिस की है, तो हम बायोटेक ट्रेन को मिस नहीं करेंगे. तो हमारी जितनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क डॉक्टर रजीज के दौर में जो बने, हमारे विजन जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के, इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाज टेकन एज ए सोशियो इकोनॉमिक इंजन फॉर ग्रोथ, राइट. लेकिन हुआ क्या, हमारे 45 सेंटर पब्लिक सेक्टर में बन गए. वी हैव इन्वेस्टेड 6 बिलियन रुपीज ऑन दोज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बाय HEC बाय अदर्स. मैं एक इदारे का डायरेक्टर भी रहा, और हमने एक्सेप्ट BT कॉटन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वी कुडंट प्रोड्यूस मच मोर. व्हाई? ये नहीं कि बना नहीं है. बीट बनाई डॉक्टर पॉसन ने FC कॉलेज में, वो हमने कॉटन के डिफरेंट 3 चीज डाले, लेकिन अवर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज दे बिकेम द बैरियर, और उन्होंने अप्रूवल प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि दुनिया जो चली गई है वो डॉक्यूमेंटेशन पे. ठीक है. तो बायोटेक रेवोल्यूशन में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बावजूद सिंस 85 तो वी वर अनएबल टू हार्नेस द बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. तीसरी चेंज, these are very sensitive and important points to understand, from technology perspective. WTO में आके
So Pakistan signed, and you will be surprised to know that Pakistan is among the first 34 countries who are the founding members of WTO. अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर आया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और मार्केट इकोनॉमी का, उसमें एग्रीकल्चर कहा कि देयर इज नो पब्लिक गुड, nor education, nor health, not agriculture. So agriculture is a tradable commodity. So इसमें intellectual property rights TRIPS agreement हुआ, इसमें agreement on agriculture हुआ कि आपको subsidies, exports के ऊपर जो promotions पे आपको एक limit लगा दी गई with the GDP. And the third point is STS, sanitary and phytosanitary tradition, that if you want to trade, you have to follow the global standards which are very high. So बार बढ़ा दी गई. Fine, हमने sign कर दिए, हमें 10 years का grace period मिला. Have we prepared our infrastructure in the country and our institutions to comply with those which we have signed the international treaty? No. 2005 में अचानक सुबह पता लगा कि हम बीटी कॉटन नहीं लगा सकते, despite it was released illegally, because we have signed Cartagena Protocol on Biosafety. तो इंटरनेशनल रेटिफिकेशन जब आप करते हैं तो यू हैव ऑब्लिगेशन. पाकिस्तान न्यूक्लियर में इसलिए आज़ाद है कि हमने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए, ईरान फंसा हुआ है. तो इन चीज़ों की अपनी एक वैल्यू है. तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में डब्ल्यूटीओ ने और बायोटेक्नोलॉजी ने, बिकॉज इट वाज ड्रिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर, सो देयर इज अनलाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, देयर वाज अ बैरियर ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सो आपकी जो पब्लिक सेक्टर की और जिम्मेदारी आ गई, बिकॉज अनलाइक the previous technology, US Monsanto company आपको मुफ्त में कोई चीज नहीं देगी. There is no free lunch. Wind up कीजिएगा. Right? So what I want to summarize in this thing is that the government, unable to comply with the international standards which have happened in the last 2 decades, since the WTO and since the Green Revolution, and now it's coming the precision agriculture, IT technology and the drone technology. So the basic fault lies with the policy and governance issue in the country. There is no ownership of agriculture at this point of time, and that's why whatever island of development we see, it is done by the private sector, by the farmers, by on hit and trial methods, right? So there is I will include later on with this thing. Thank you very much. You started with this phrase that what happened in Sikkim, because there was ownership by the highest government hierarchy. गवर्नर की ओनरशिप थी, एग्रीकल्चर की, मिनिस्टर्स की थी, और आपने एंड भी इसी पे किया कि देयर हैज टू बी ओनरशिप बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ओनरशिप ही नहीं होगी जिस चीज की, तो उसका क्या हाल होगा. तो इसी पे मैं बंद करता हूँ. अच्छा, नाउ जी डॉक्टर सरकार, ऑल द वे फ्रॉम पेरिस, लेट्स लिसन टू यू सर. फ्लोर इज योर्स. Thank you, General Saab. And let me put it this way. अगर मैं पाकिस्तान की सारी पॉलिसीज देखूं इस वक्त, चाहे वो हमारी फिस्कल पॉलिसी हो या हमारी एनर्जी पॉलिसी हो, तो मैं फोकियत दूंगा एनर्जी और फिस्कल पॉलिसी पे, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने पे. इसलिए दूंगा कि अगर आपने ग्रो करना है एज एन इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर हैज टू प्रोवाइड द इम्पेटस सो दैट आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैन डू वेल इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली. और दूसरी वजह इसकी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कीमतों में इस्तेहकाम रहे, तो आपको एग्रीकल्चर को बेहतर करना होगा. सो लेट्स पिक अप द डिस्कशन फ्रॉम हियर. देखिए, दुनिया में 3 तरह के एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस या रिफॉर्म्स हुए हैं. सबसे पहला ग्रीन, जिससे पाकिस्तान ने 1960 में फायदा उठाया. फिर हुआ आपका जीन रेवोल्यूशन, जिसका पाकिस्तान पार्ट ना बन सका. और अब हम गुजर रहे हैं प्रिसिजन एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, जिसका भी हम पार्ट नहीं बन पा रहे. इन तीनों का एज एन इकोनॉमिस्ट अगर आप देखें, तो इसका जो नुकसान है वो है सबसे बढ़ के प्रोडक्टिविटी पे. और एज एन इकोनॉमिस्ट फिर ये आप इसको दोबारा इसका अगर जायजा लें, तो प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग रन इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग एन इकोनॉमी. पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी अगर आप देखें तो 50% से भी कम है 5 स्टेपल क्रॉप्स में फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट रनर्स. इसका असर जो है आपने अभी रिसेंटली ये देखा, कॉटन में भी देखा, वीट में भी देखा, शुगर केन की जो इस वक्त सुक्रोज कंटेंट निकल रही है उसमें भी देखा.
और इसका आप पे असर एक आम आदमी पे कीमतों में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप सिर्फ कीमतें देखें तो चीनी की कीमत तकरीबन 2.5-3 साल में 2 गुना हो गई, वेजिटेबल घी की कीमत तकरीबन 2 गुना हो गई, दाल माश की कीमत 71% बढ़ गई। ये सब असरात हैं कि आपने चूंकि अपनी लोकल प्रोडक्टिविटी कम की तो आपकी चीज महंगी भी बनी, और फिर आपने पहली दफा पिछले 6 माह में जुलाई से दिसंबर तक तकरीबन $4 बिलियन की इंपोर्ट की। So we will stick with productivity of agriculture to frame a reform agenda if we want to move forward. दूसरी जो सबसे अहम चीज एग्रीकल्चर में है वो है पानी की फराहमी। It is astonishing to note कि हमारी कैनाल इनटेक ऑफ वाटर है 104 MAF और हमारा आउटफ्लो आधा है। Now this is extremely important. हम आधा पानी जाया कर देते हैं in a country where some experts feel that we are water scarce. अगर इन सब चीजों को आगे लेके चलें तो 37% लोग फूड इनसिक्योर हैं। इससे मतलब यह है कि फूड की अवेलेबिलिटी, फूड का न्यूट्रिशन कंटेंट, ये सब वीकनेसेस हैं टू आवर पॉपुलेशन, और इसका ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट है इनटू डेवलपिंग द माइंड्स ऑफ द यंग जनरेशन इन द फ्यूचर। ये सब कुछ उस जगह पे हो रहा है in a country where our per capita income is only about $1,500, which is obviously on the lower end compared to where we should be of around 5,000 to 10,000 per capita income. इस सब से आपका एक फिजिकल इम्पैक्ट भी है, यानी कि आपको एक सब्सिडी की सिचुएशन में भी रहना पड़ता है फॉर द वल्नरेबल, और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि जब आप चीजें बाहर से मंगाते हैं तो उस पे आपको डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। सो एग्रीकल्चर की अहमियत जो है वो बिल्कुल कलीदी है आपकी इकोनॉमी में। स्पेशली आप आने वाले वक्तों में 5th लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे दुनिया में 2.4% की ग्रोथ करते हुए। सो यू कैन नॉट इग्नोर द इफादियत ऑफ एग्रीकल्चर एज वी मूव फॉरवर्ड। अब करना क्या है? देखें, पाकिस्तान में जो अगर ओवर आर्चिंग आप देखें तो वो है कॉम्पिटेंस एंड प्रोडक्टिविटी। मेरे बाकी रुफका ने भी इसी तरफ तवज्जो दी है, और हमें भी आगे अगर चलना है तो कॉम्पिटेंस एंड प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेंथन करते हुए चलना है। और तीसरी चीज यह है कि पॉलिसी ओनरशिप लेनी है। पॉलिसीज कहीं भी बन रही हो, इसकी ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान के पास आनी चाहिए, और पाकिस्तान को उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेके जाना चाहिए। अब पॉलिसीज का क्या सिचुएशन है? देखें, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है ना वो सरकार में एक कलीदी रोल प्ले करती है अगर आपने आगे चलना है। हर चीज को रीइन्वेंट करना जरूरी नहीं है। एक रीसेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो 2018 में नेशनल फूड सिक्योरिटी के नाम से बना था। ये इंटरवेंशंस डिफाइन करता है क्वालिटेटिव भी, यानी कि कैसे आपने चीजों को बेहतर करना है प्रोडक्टिविटी वाइज, और क्वांटिटेटिवली कि आपने रिसर्च में कैसे पैसे खर्च करने हैं, आपने कैसे बेहतर वैरायटीज मंगवाने पे पैसे खर्च करने हैं, और पाकिस्तान की ग्रोथ को अगले आने वाले सालों में 4% पे लेके जाना है। इस डॉक्यूमेंट को बेहतर किया जा सकता है, जैसे सब चीजें बेहतर हो सकती हैं, बट इसमें इंटरवेंशंस भी हर सेक्टर में डिफाइन की गई हैं। हैविंग बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, एक तो यह है कि ये एक बेसिस फराहम करता है हमारी ओनरशिप की, इसको आगे लेके चलने की, पर इससे बढ़ के भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान में मार्केट फॉर एग्रीकल्चर नहीं बन सकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि स्टेट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मंगवाने और बाहर भेजने, यानी बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे कायम है। और आपने रिसेंटली देखा कि वीट और शुगर में इन दोनों चीजों ने हर्ट किया है। सो अगेन, आप एज इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको लिबरलाइज करें ताकि हमारा किसान एक्सपोर्ट भी कर सके, और जब जरूरत हो तो आप इंपोर्ट भी कर सकें, बिकॉज ये जरूरत हर वक्त रहेगी। सो द पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी क्रिएटेड। सरकार के पास कभी भी ना इतना पॉलिटिकल कैपिटल होता है और ना ही इतनी वक्त होता है कि वो इन छोटी छोटी माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस में जाए। सो मार्केट क्रिएट करने के लिए सरकार को इसमें से मूव आउट करना है,
और सरकार को इसमें से भी मूव आउट करना है कि आप एक क्रॉप को अगर देते जाएंगे एक फ्लोर प्राइस, तो उसकी कीमत आपने डिटरमिन कर दी है, आपको इसमें से भी मूव आउट करना है। पर जिस चीज में आपको रहना है वो है कि आपने टारगेटेड सब्सिडी रेजीम बनानी है, ताकि दुनिया भर में अगर आप देखें तो सब्सिडी जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो फर्टिलाइजर की फराहमी हो, चाहे वो मैकेनाइजेशन में मदद हो कि आपको ट्रैक्टर या दूसरी चीजें जो हैं बेहतर क्वालिटी की और सस्ती मिल सकें, चाहे वो वाटर कोर्सेज की लाइनिंग हो, ऑल टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी। और फिर अगर कोई डायरेक्ट सब्सिडी, अगर आप हम पहले भी सरकार में देखते रहे हैं 12.5 एकड़ तक देना चाहें, तो आपको डायरेक्ट डेटा बेसिस बना के उन फार्मर्स को सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ सप्लाई चेन हैज बीन एन इशू, हमारे रुफका ने इस पे बात भी की है। देखें, ये जो बहुत छोटी लेवल की इंटरवेंशंस है ना, ये अब काम करेंगी नहीं। दुनिया ने अब लीप फ्रॉग की बजाय मून शॉट की तरफ चले गए, यानी कि आप बड़ी इंटरवेंशंस चाहते हैं। इसका आसान तरीका फिर ये है कि जो काम समझता है, अगर कोई दुनिया के लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, कोई कंपनीज हैं, आप उनको उस चीज में जिसमें आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत है इंटरवेंशन की, उसमें इन्वॉल्व करें। और हमारा इसमें कलीदी रोल फेडरल लेवल पे है, और वो है हमारे फॉर एग्जांपल अदारों का, जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कि आप अगर सप्लाई चेन बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस लॉजिस्टिक सेक्टर में वो अदारों को शमूलियत दें, ताकि इस सप्लाई चेन को फौरी तौर पर बेहतर अगले चंद साल में किया जा सके। सो लेट मी नाउ कम टू अनदर पॉइंट। देखिए, फेडरेशन का और प्रोविंसेस का जब तक सिनर्जी में काम नहीं होगा, हम आगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बढ़ नहीं पाएंगे। यस, एग्रीकल्चर इज अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट, पर अभी मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जहां पे आपको जरूरत है फेडरेशन की कि वो मदद कर सके इस ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क में, ताकि आप एग्रीकल्चर को सारे प्रोविंसेस में बेहतर कर सकें इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन। आखिर में मैं ये कहूंगा कि इस वक्त हम एक आईटी रेवोल्यूशन में दुनिया में गुजर रहे हैं, हम एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में गुजर रहे हैं, और दुनिया ये देख रही है कि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो नीचे जा रही है, बिकॉज यू आर डूइंग बेटर एट गेटिंग योर स्टफ टुगेदर टू प्रोड्यूस एन आइटम। हमें हर सूरत में इस चीज से फायदा उठाना पड़ेगा। हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर का जो रेवोल्यूशन है उसको मिस नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे कि सीपेक में आपने हर चीज की बात सुनी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग लगानी चाहिए, रोड नेटवर्क होना चाहिए, आपने रेलवे के नेटवर्क की सुनी। सीपेक में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जोन्स का भी जिक्र है, पर आपने उसका जिक्र शायद बहुत कम सुना होगा। So again, these are zones which I would then link to the next generation of Pakistan's agriculture, or next generation of Pakistan's agriculture जो है वो exportable surplus है, given कि हम वो meet कर सकें WTO के सारी specifications, ताकि हम food processing में जा सकें, and that should be eyed in the next 3 to 5 years। और चूंकि ये हमने लिखा हुआ है सीपेक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जोन्स, ताकि हम अपनी फूड प्रोसेसिंग और जो न्यू एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल फिशरीज जो है, इसकी तरफ भी तवज्जो दे सकें। देखिए, ट्रेडेबल कमोडिटीज जो है ना, उसी से पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, इसी से डोमेस्टिक कॉमर्स बढ़ेगी, और हम रीजनल कॉमर्स भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में एवरीथिंग इज इन द एंड पुट टू मनी। मेरा ये हम्बल ख्याल है कि everything is not about money. It is also putting our heart and hard work into doing as a nation what we must do. And here that is doing the interventions, thinking that one, growing agriculture is our future. Productivity is the linchpin of this. और हम एरिया नहीं बढ़ा सकते। अगर हम इस बहस में ही उलझे रहेंगे कि हमें शुगर केन से कॉटन में मूव करना है, जरूर करनी चाहिए ये बहस, बट जो एरिया हमारे पास मौजूद है, क्या हम अपने प्रोग्रेसिव फार्मर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उस सारे एरिया की यील्ड को ले आए हैं? दैट शुड रिमेन आवर फोकस एज वी मूव फॉरवर्ड। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4% पे ले जाना जो है वो एक
क्वांटिटेटिव एम हमारे जहन में होना चाहिए और हमें उसको टारगेट करना चाहिए. इन दी एंड इसको एंकर करना चाहिए हमें थ्रू अ स्मॉल कमेटी, ये जरूर होना चाहिए. मैं पर्सनली कमेटीज का फैन नहीं हूं, इसलिए कि कमेटीज की मीटिंग्स तो हो सकती हैं बट वो उसको स्टीयर नहीं कर सकती. जो भी कुछ स्टीयर होना है वो एक उन एक्सपर्ट्स ने करना है, चाहे वो बैठे PARC में हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो लायलपुर या फैसलाबाद में बैठे, या चाहे वो मिनिस्ट्रीज में बैठे, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट्स में बैठे. ये वो कलीदी अदारे हैं जिनको आपने बेहतर ह्यूमन रिसोर्स देके अपने कॉम्पिटेंस के इशू को सॉल्व करना है. हमने कोई भी काम अगर किया है तो इसी तरह किया है. हमने बहुत ज्यादा अहमियत दी, चाहे वो बिजली घर लगाना हो या चाहे वो हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना हो, हमने उसको बिल्कुल रेजर शार्प फोकस से लेके चले. हमने उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स दी और फिर हमने उसको एंड तक पहुंचाया. मनीज आर ऑलवेज फंजिबल, दे विल कम if we have the hard work done to show a way forward. And इसको of course leadership को तो लेना ही चाहिए, but मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो लोग जिन अदारों में काम करते हैं उनके पास बहुत लेवरेज होता है चीजों को आगे लेके जाने का. वो लेवरेज इस्तेमाल करें, इस पॉलिसी को बेसिक फ्रेमवर्क बनाएं और इसको सेल करें पूरी दुनिया में. इस वक्त अगर हम कोई चीज आगे लेकर चलना चाहते हैं तो वो हम एग्रीकल्चर लेकर चलना चाहते हैं. फूड सिक्योर करना चाहते हैं पाकिस्तान को, फार्मर्स इनकम बेहतर करना चाहते हैं. फार्मर इनकम्स के बेहतर होने से ही पाकिस्तान के मोटर बाइक्स बिकेंगे और पाकिस्तान का जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें पैसे आएंगे. पाकिस्तान की फार्मर्स जो हैं उसमें 38% लेबर फोर्स इन्वॉल्व है. इन 38% लेबर फोर्स की जिंदगी बेहतर करने और जो मिलियंस ऑफ यूथ एंटर कर रहे हैं उनको नई नौकरियां देने का भी यही तरीका है. सो माय टेक ऑन द होल थिंग इज कि हमें इस वक्त सारी पॉलिसीज पर फोकियत देनी चाहिए एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट को और उसकी ओनरशिप को. थैंक यू सो मच जान साहब. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Dr. Khaqan. You talked about one important thing that you know the food insecurity has also impacted and is going to impact further the nutritional impact on the children. You know what are we doing about our next generation? Will they be mentally and physically weak because we can't provide them proper food? What is the egalitarian society and state about? It's all the same. आपने बहुत अच्छी बात की कि सिनर्जी होनी चाहिए प्रोविंसेस और फेडरेशन में. तो ये सिनर्जी पूरी तरीके से लैक कर रही है कि when the federation and the provinces are not on talking terms to whether the governance. आपने कहा, आपने आखिर में एक और बात मीटिंग करानी चाहिए और फिर आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी. मैं जस्ट वाचिंग ये नेट पे देख रहा था कि इसराइल ने वो सैटेलाइट से और ड्रोन से अपने क्रॉप्स की प्रोग्रेस को जज करते हैं कि किधर कौन सा इंसेक्टिसाइड देना है, पेस्टिसाइड देना है, किधर पानी की जरूरत है, कितना मॉइस्चर चाहिए. तो वो एक वन स्टेप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके एक नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर में चले गए हैं. Whereas like railways we are generation 1 पे हम फंसे हुए हैं. अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा पहले मैंने एक सवाल किया था और मैं I throw open this that most of our parliamentarians are agriculture sector. So why can't they work on this agriculture? तो मैं राबिया मैम, would you like to answer this? जी, I will try to answer this. बात ये है कि जब आप पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, ये हम पे बारहा ये बात कही जाती है कि एग्रीकल्चरिस्ट पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल से वहाँ पे उस ऐवान की शायद चमक बहुत ज़्यादा है कि आप एग्रीकल्चर को भूल जाते हैं जो आपका मेन सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर है. दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम वहाँ ज़राअत की बात नहीं करते. हम अपनी बजट डिबेट्स देख लें, हम अपनी पार्लियामेंट की डिबेट्स देख लें, उनको सिवाय प्रिविलेज मोशन पे बात करने के ये जो नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं
मतलब ज़राअत के अलावा इस मुल्क का कोई एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि जब इस अवाम को 25 मिलियन टन गंदम पैदा हो रही है, आधी रोटी कोई खा के सो रहा है, एक रोटी खा के सो रहा है, इस मुल्क में भूखा अभी तक कोई नहीं सो रहा। और खुदा वो वक्त ना लाए कि इस मुल्क में लोग भूखे सोना शुरू हो जाएं, तो इस मुल्क का जो पॉलिटिकल chaos होगा, खुदा ना करे कि हम वो वक्त देखें, लेकिन हमें उसको जहन नशीन कर लेना चाहिए कि हमें इस मुल्क में वाफिर गंदम पैदा करनी है, and our policies have to be aligned with whatever has been said today and whatever we have been reading over the years. लेकिन एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी खुशाइंद बात करना चाहूँगी, वो जो रे है ऑफ सिल्वर लाइनिंग जो है, कि मुझे भी पिछले कई साल हो गए मुख्तलिफ कैपेसिटी में, कभी मुशावरत, कभी कुछ, जो नाकिस अकल है वो बात करने की। अब मुझे कुछ थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, क्योंकि अब हर शख्स ज़राअत की बात कर रहा है। चाहे वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी ज़राअत के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो भी ज़राअत की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अब शायद ये एहसास हुआ है कि ज़राअत के बग़ैर हमारा मुस्तकबिल तारीक है। तो अब हम सब ने अब उस सिनर्जी को इकट्ठा करना है। रॉकेट साइंस कोई नहीं है, उस सिनर्जी को इकट्ठा करके और उसके ऊपर हमने अपना रोड मैप बताता है। पहले तो हमारा रोड मैप ही नहीं था, जाना होता था इस्लामाबाद, मुंह हमारा होता था कराची की तरफ। अब एटलीस्ट हम सब ने ये तयन किया है कि हम मोटरवे से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बेहतरी, मुझे अल्लाह ताला हम सब की मदद करे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। नहीं, इंशाल्लाह जी, ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए। एक आपसे ही है दूसरा सवाल, या और कोई जान, एक सवाल आया है कि देयर इज अ कॉमन परसेप्शन दैट एग्री सेक्टर डज नॉट पे टैक्सेस। इस पे क्या टैक्स नहीं देते, कहते हैं जी एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ, ये वो, इस पे कोई एनीबॉडी वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी, आई कैन रिस्पॉन्ड ऑन दिस अगर कोई और नहीं बात करा। ये देखें, एग्रीकल्चर टैक्सेस, ये एक बड़ा मिसनोमर है कि एग्रीकल्चर टैक्स पे नहीं करता। एग्रीकल्चर टैक्स पे कर रहा है, वेर एवर इनकम इज जनरेटेड टैक्सेस आर पेड। लेकिन सवाल ये है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को दे क्या रहे हैं कि वो टैक्सेस को पे करेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स इस वक्त लगा हुआ है वो हर काश्तकार दे रहा है, लेकिन हमारी जो 85% काश्तकार है, वो तो 12.5 एकड़ से उनकी लैंड होल्डिंग कम है। तो आप 85% काश्तकार से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी इनकम होगी तो वो टैक्स पे करेगा। तो ये एक बड़ा एक शहरों में बैठ के एक ये तासुर पैदा किया जाता है कि ज़राअत टैक्स नहीं करी। ज़राअत के ऊपर जितने इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड टैक्सेस हैं, वो जो उस काश्तकार से लिए जाते हैं, उसकी उसकी भी तो बात हमें करनी चाहिए इन ऑल फेयरनेस। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देना, अक्सर ये सवाल मुझसे किया जाता है कि जी ज़राअत पे कोई टैक्स नहीं है, ज़राअत पे कोई काश्तकार टैक्स नहीं पे करा। हुकूमत का टैक्स है और काश्तकार बिल्कुल टैक्स पे करें जिनके ऊपर लागू होता है। आप सर कुछ खकान तुम बताओ ना इस पे। डॉक्टर यूसुफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं पहले जो आपने बात की थी रिगार्डिंग के वाई पार्लियामेंट इज नॉट, देखें जो मुल्क की जो पाई है उसमें अगर आपके पास जो हार्ड अर्न मनी है उसमें 1200 अरब आपके डिफेंस पे जा रहे हैं, तकरीबन इतने ही पैसे अगर आपके डेट रिलीफ में जा रहे हैं, कर्जा देने में, तो यू हैव लेफ्ट विद ओनली, और गवर्नमेंट रन करने में 480 जा रहे हैं, तो यू लेफ्ट विद वेरी लिटिल इन द पाई फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। पहली बात तो ये है, ये फंडामेंटल बात है जिसको लोग मिस करते हैं कि हमारे पास पाई में है कुछ नहीं। और दूसरी बात ये जो आपने कही है, जहांगीर खान तरीन मेरे पास आए जब मैं निफ्जी का डायरेक्टर था, तो मुशर्रफ का दौर था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर आप एग्रीकल्चर पे 10 साल शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के दौर में एडवाइजर रहे पंजाब के, और अब वक्त आया है तो आप यू बिकेम इंडस्ट्री मिनिस्टर बन गए हैं। तो कहने लगे डॉक्टर साहब, इंडस्ट्री मेरा प्रोफेशन है और ज़राअत मेरी हॉबी है। सो दैट इज द डिफरेंस, राइट? सो व्हेन बिकम प्रोफेशन, so because from where they're earning the money, so they
put that in the front. अभी भी आप देखें कि कोविड-19 में अगर आपने 1.2 ट्रिलियन का पैकेज दिया है और उसमें 200 अरब का सिर्फ कॉटन सेक्टर को, इंडस्ट्री को दिया है, तो उसमें एग्रीकल्चर और फूड सब्सिडी पे अगर 24 अरब व्हीट की निकाल दें तो इट कम्स आउट टू बी 20 बिलियन आउट ऑफ 1.2 ट्रिलियन. सो जो लोकस में क्या हुआ आप देखिए कि अयूब खान के दौर में वी हैव 20 प्लेन्स एंड जब अब 16 प्लेन में से सिर्फ एक चल रहा था और वो भी गिर गया डेंजर खान में. तो सर ये ओवर ए पीरियड ऑफ निगलेक्ट है ओनरशिप का. जिस दिन जिस तरह राबे ने कहा कि अब जो रियलाइजेशन हो रही है कि हम लोग बहुत नीचे स्लिप हो गए हैं, अब मजीद गिरने की गुंजाइश नहीं है वरना मुल्क में बड़ा लॉस होगा. तो आपका जो वेबिनार है इज अ वेरी टाइमली एंड यू मस्ट हैमर आउट टू द एलीट्स ऑफ दिस कंट्री कि अगर अब इन्होंने इंटरवेंशन ना की तो फिर हाथ से काम निकल जाएगा. जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया है कि यू टॉक्ड अबाउट ऑलिव, स्ट्रॉबेरी ऑयल, these are just the pin pricks, and what are you doing about cotton and wheat? कॉटन का राबे ने बता दिया है और उस पर हमने लिखा भी है कि कॉटन की जो डिसमल सिचुएशन है वो महज रेड टेपिज्म है कि जो 48 का एक्ट था उसमें ये था कि कॉटन जो गोरे ने 1923 में बनाया कि कॉटन की रिसर्च की जाएगी फ्रॉम कॉटन सेस. उस जमाने में 1-2 आने था, फिर वो बढ़ के अब 50 रुपए पे है, सिर्फ 50 रुपए पे 34,000 की 175 kg की वन बेल होती है, उसमें 50 रुपीज, उसके 600 मिलियन इकट्ठा होता है. उससे हमारे कॉटन के 2 बड़े इदारे सकरंद और मुल्तान में चलते हैं. 3-4 साल से जो पॉलिसी निगलेक्ट है कि उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम अपने बजट में उनका पैसा नहीं रखेंगे इसलिए कि ये सेस से चलना है. सेस मिल नहीं रहा, वो अपनी जमा पूंजी खा गए. अब 5 महीने से इन इदारों को कोई तनख्वाह नहीं मिली, 3 साल से पेंशन नहीं मिली. तो कॉटन के जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एनी इवन सैलरीज. तो आप ऐसे सीनियरों में क्या बात करेंगे रिसर्च की, नंबर 1. तो ये, और दूसरा जो हमारा एप्टमा का इतना स्ट्रॉन्ग माफिया या कार्टेल है कि दे हैव रज़ाक दाऊद के थ्रू उन्होंने, बोसन साहब भी जोर लगाते रहे, बाद में दूसरे भी, इस मौजूदा वजीर भी, उन्होंने फ्री ड्यूटी इंपोर्ट कॉटन एंड देन 5% जो है वो रेगुलर ड्यूटी माफ करवा ली है कॉटन यार्न पे और कॉटन पे, और वो 30 जून तक है. तो कौन कॉटन लगाएगा? तो हमारी पॉलिसी इंटरवेंशन दे आर कंट्रेरी टू यू नो टू द प्रमोशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अगेंस्ट हैं. तो जब तक ये दुरुस्त नहीं होगी तो कॉटन क्यों. मुझे जब ये पिछले दिनों इमरान खान साहब ने बुलाया इनको, गौहर एजाज को, एप्टमा के, तो वो कहने लगे कि जी हम 76 सेंट पर मैं पाउंड दे रहा हूँ, दुनिया में 71 सेंट कीमत है, फिर भी फार्मर क्यों नहीं लगाता? आप मुझे इस सवाल का जवाब दें. तो मैंने उन्हें कहा कि जी इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है. तो उसके $1 लग रहा है 1 पाउंड जो है वो कॉटन उगाने में, तो वो 76 सेंट की आपको क्यों दे? तो प्रोडक्टिविटी जो खाकान ने भी जिसका जिक्र बार बार किया है, जिस मुल्क में इतनी लो होगी तो वो वहाँ इनपुट प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं फर्टिलाइजर की एज कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्री. वहाँ 600-650 रुपए का बैग है, हमारे 2,500-3,000 का बैग है. तो हाउ यू कैन कम्पीट? तो हमें ये चीज़ों की इंटरवेंशंस करके, और जिस तरह CPEC में कहा है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज था उसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स पे गए और एग्रीकल्चर वाज टोटली एब्सेंट. तो दूसरी फेज में बहुत शोर मचा के उसमें इंक्लूड कराया गया है, लेकिन उसमें भी सिवाय हाइब्रिड राइस के अभी तो कोई, जो हालांकि 134 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है फूड आइटम चाइना, हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है. तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है. ये इंशाल्लाह अगर हमने इस पे जो डायरेक्शन तय हुई है, अगर उस पर काम किया, उसमें शर्त ये है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो. डॉक्यूमेंट्स आर, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल विद द गवर्नमेंट. डॉक्टर खाकान आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है ना, इसको भी हमें जरूर क्लियर कर देना चाहिए ताकि इसका जो बैड इम्पैक्ट है ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर वो खत्म हो जाए.
यस, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हेवी है, जैसे कि हर सेक्टर में है ऑन द इनपुट्स, और उससे आपकी कॉस्ट इनफैक्ट बढ़ जाती है. सो आपको ऑब्वियसली मूव करना है फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और उनको कम करते हुए आपने डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाना है. डायरेक्ट टैक्सेशन ऑब्वियसली वो उसी पे लागू होगी जो कि कमा सकता है, जिसका रेवेन्यू होगा, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी. उसके लिए ऑब्वियसली इवेंचुअल गोल तो यही होना चाहिए कि जो एक रिजीम है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, जिस तरह फेडरल के पास ये राइट है, इवेंचुअली आपने उसी तरफ जाना है. बट उस तरफ जाने के लिए पहले आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकलना है, आपने डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ मूव करना है. अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. सो ये रिफॉर्म ऑन द साइड जरूर होना चाहिए, ताकि आप एक गुड नेम दें एग्रीकल्चर को कि आप 20% कंट्रीब्यूट करते हैं इन द जीडीपी, और इसका शायद कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा होगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर देयर, और आप उतना ही टैक्सेस में देते हैं. अब इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो दूसरी तरफ मैं कहूंगा, वो ये है कि हमें एडवोकेसी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हर लेवल पे करने की जरूरत है, बिकॉज ये एडवोकेसी उन जगहों पे नहीं हो पाती, ना उन इंटरेस्ट ग्रुप्स की जो कि फार्मर्स और हमारा बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर है, ना ही उन रिसर्चर्स की जो कि इस चीज को समझते हैं कंपेयर टू अदर एरियाज. ये हमेशा से वीक रही है. सो हमें बहुत ज्यादा एडवोकेसी करनी चाहिए कि ये कहाँ पे खड़े हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, बिकॉज अगर इसको हम बेहतर नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर एज एन इकोनॉमी नहीं होगी. डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर शुजात आपसे एक क्वेश्चन है कि देखिए, जी सर. tell me, has 18th amendment helped agriculture or not by empowerment of provinces? One, and is it not a capacity issue? देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी, अभी वो अपना डेवलपमेंट फंड नहीं खर्च सकते, ऐसे प्रोविंसेस भी हैं. तो आप कैसे ये है, व्हाट आर वी लुकिंग एट? आपने सब देखें, सब इतनी अच्छी प्यारी बातें आपने की हैं, इसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? Which is the terminal end is the bureaucracy. इस बारे में आप क्या कहना है? मैं ब्यूरोक्रेसी सर, देखें, ये जो डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल बजटरी एलोकेशंस की डिसीजंस जो हैं, ये लार्जली तो पॉलिटिकली डिटरमिन्ड होती हैं. ये तो ये डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस ऑफ द पॉलिटिशियंस कि वो पैसे कहाँ लगाना चाहते हैं. मैंने अपनी जो पॉलिसी नेग्लेक्ट की जो बातें की थी शुरू में, उसमें मैंने बीच में आई अलूडेड कि हमारा प्रेफरेंसेस बदल गई हैं. हमने अपने बजटरी एलोकेशंस जो हैं, जिसको हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं और एडीपी कहते हैं, प्रोविंसेस में एग्रीकल्चर का 90 के दिहाई में भी एग्रीकल्चर का एक सब्सटैंशियल, जब मैंने कहा था 90 में हम ठीक थे, तो एग्रीकल्चर को अच्छी खासी एलोकेशंस मिल रही थी. तो ये जो बाद में डॉक्टर यूसुफ ने भी जिक्र किया कि बहुत सारा ये जो WTO के साथ, ये मार्केट रिफॉर्म्स के साथ बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के खाते में डाल दी गई और वो पब्लिक गुड को निकाल दिया गया. तो उसकी वो जो चीज़ें सामने आई, उसके ऊपर जो पॉलिसी लेवल के ऊपर वो बजटरी एलोकेशंस, वो जो एक माहौल बना हुआ था, एक इन्फ्लुएंस था उन चीज़ों का, पाकिस्तान के पॉलिसी अभी भी है इन्फ्लुएंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उन चीज़ों का. तो वो जो बजटरी एलोकेशंस हैं, वो पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन्हीं वो लार्जर चीजें. ये जो बाहर जो डोनर्स हैं या लोग हैं, ये पॉलिटिशियंस से भी मिल मिला रहे होते हैं, उनको भी सेंसिटाइज कर रहे होते हैं कि आपको ये चीजें करेंगे तो आपके हालात बेहतर होंगे. तो एग्रीकल्चर उस वक्त वो जो फ्रेमवर्क बना, उसमें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई. 18th अमेंडमेंट के बाद मैंने ये एक देखा रिसेंटली, एक आर्टिकल, जब मैं तैयारी कर रहा था आपके इसके लिए, मैंने एक अखबार में आर्टिकल देखा कि बाय एंड लार्ज नाम बदल गया है. मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में ये भी जिक्र हुआ कि फूड सिक्योरिटी में बाकी चीजें निकल गई हैं. अभी तक जो रेगुलेटरी कंट्रोल है एग्रीकल्चर का, वो सारा का सारा इस्लामाबाद में पड़ा. मैंने एक रिसेंट आर्टिकल पढ़ा, ये डॉक्टर यूसुफ मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, ये ज्यादा नॉलेज है इनके पास. रेगुलेटरी कंट्रोल किसी स्टेज में सूबों ने कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. वो कोई एक लैंग्वेज, अभी मुझे वो बात एग्जैक्टली याद नहीं आ रही तफसील से, कि एग्रीकल्चर का वो जो जनरली सूबों ने कुछ रेगुलेटरी कंट्रोल पहले भी 18th अमेंडमेंट से फेडरल गवर्नमेंट के हवाले किया हुआ था, और उसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें ये सीड की रेगुलेशन है, ये बहुत सारा ये जो
ये सीड है, फिर ये जो मॉनिटरिंग ऑफ ये इनकी वो जो इदारे हैं, ये लोकस कंट्रोल करने वाले, इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी तक इनके पास है। वो लॉज भी जो है, वो ब्रीडर राइट, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो सारी फेडरल गवर्नमेंट के हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आज जिक्र हुआ कि ये चीजें हमने मिस कर दिया, हमने जीन रेवोल्यूशन को मिस कर दिया, हमने अभी बहुत सारी चीजें जो ब्लॉक हो रही हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट से ब्लॉक हो रही है, ये वहां से ब्लॉक हो रही है। तो ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ने करनी थी बहुत सारी चीजें, तो स्टेट तो थोड़ा सा हैज टेकन अ बैक सीट। अब वो स्टेट की जो बैक सीट है, अब ये एक आर्गुमेंट आया है, ये मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लोग इस पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर हफीज पाशा, मैंने उनका बार बार नाम लेता हूँ क्योंकि वो हमारे मुल्क के बड़े नाम वाले आते हैं, उनको मैं इसलिए नाम लेता हूँ, उनसे मैं ये तवक्को नहीं करता था कि वो अपने आर्टिकल में लिखेंगे कि जी हमें वो मिनिमम प्राइस कंट्रोल का निजाम वापस लाना चाहिए। अब वो बाहर के मुल्कों में भी काम करते हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, मैं बड़ा हैरान हूं, मैंने उनसे किसी ने पूछना है, आप इतने ग्लोबल काम करते हैं, आपको इतने सारे डोनर आपके साथ काम करते हैं, आपने ये क्यों कहा है कि जी मैं मिनिमम प्राइसेस के निजाम को पाकिस्तान में वापस लाना? ये तो उनके लिए वो कहते हैं ना रेड रैग है फॉर द डोनर वर्ल्ड, फॉर WTO, ऑल दीज पीपल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन हमने अपने अगर एग्रीकल्चर को बचाना है तो ये जो राबिया ने बात की है, हमें इन कता नजर इन लोगों के, हमें कुछ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से भी कुछ फैसले पड़ने पड़ेंगे, ताकि हम अपनी फार्मर कम्युनिटी को ये जिस किस्म की मुश्किलात से गुजर रहे हैं उसको बचा सकें। ये मेरे लिए सर एक सवालिया निशान है, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और जो मैं चाहूंगा आपके थोड़ा जवाब इस पे, it was mentioned that we are destroying our soils because of use of excessive fertilizer. तो देखिए अभी यूरिया है, DAP है, यही इस्तेमाल हो रहा है, और यही थोड़ा काम किया है डॉक्टर खाकी के साथ भी, इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी कि DAP हम इंपोर्ट करते जाते हैं बिकॉज हमारे सॉइल को चाहिए। तो हाउ आर वी डिस्ट्रॉइंग आवर सॉइल, व्हाट टू डू? क्या हम इमीडिएटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इस पे कोई मुझे जवाब दें, ताकि लिसनर्स वुड लाइक टू नो ये एक लेमैन के लिए बड़ा तकलीफ दे है कि जी हम अपनी जमीन ही खराब कर रहे हैं फर्टिलाइजर डाल के, तो क्या करें फिर? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूसुफ, फिर मैं आपसे लूंगा फार्मर से। इकोनॉमिस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिस्ट जो है, उन्होंने कहा, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में था, ये जो इंटरनेशनल फूड प्राइस मिलता है उसमें द नॉर्मन बोरलॉग का जो इंस्टीट्यूट है, दे आर वर्किंग ऑन दिस, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जरूर होना चाहिए उस निश में, दोज हु कैन अफोर्ड विद अवर 2.4% ग्रोथ, सो use of chemical is become inevitable. So that is the fundamental and principal point we must realize. उन्होंने एक स्टडी की है, बकायदा साइंटिफिक स्टडी, कि अगर दुनिया का सारा रिफ्यूज, ह्यूमन रिफ्यूज भी इंक्लूडेड, ये लाइक यूरिन एंड फीसिस, वो हालांकि डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट करके वापस सॉइल में डाल दिया जाए, उसके बावजूद we will be able to feed only 4.5 billion people. So ये साइंटिफिक स्टडीज हैं। अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। देखिए यूरोप अफोर्ड कर सकता है, जापान अफोर्ड कर सकता है। जापान में पॉपुलेशन ग्रोथ इज -22%, रूस में पॉपुलेशन ग्रोथ इज -28%। इसका क्या मतलब है कि 100 बंदे मर रहे हैं और 72 बंदे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है कि 2.4% ग्रोथ है। तो फॉर अस यूज ऑफ केमिकल इज unavoidable, number one, because we have to enhance the productivity and we have to do the intensive agriculture. Number 8, niche में आप कर सकते हैं जो those people who can afford, European people can afford, क्योंकि population growth जो उनकी है वो या जीरो है या माइनस में है। नंबर 2 ये है कि हाँ, हमें बैलेंस काम के लिए जाना चाहिए कि जो शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट है, जो पोर्ट इंडस्ट्री का वेस्ट है, उसको प्रोसेस करके ऑर्गेनिक मैटर बनाना चाहिए। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वी मस्ट एनहेंस द ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन जो हमारी इलीट क्लास में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे चले जाएंगे, तो बिलीव यू मी कि ये हमें बहुत डिजास्टर में ले जाएगा। फॉर गॉड से जो हमारे मस्ट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज ये बता रहा है कि विद आवर पॉपुलेशन बिकमिंग 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, आजकल 6th पोजीशन पे हैं, 2050 में हम 5th लार्जेस्ट हो जाएंगे विद अवर लिमिटेड
soil available, urbanization हो रही है, land सुकड़ रही है, water सुकड़ रहा है. We have no other way but to enhance the productivity, और productivity की input में chemicals they play a major role. ये वही मैं कहता हूँ कि ऑफिसेज में बैठ के, ड्राइंग रूम से बैठ के, it is very difficult to understand what is the situation on ground. You talk to people, वो कह रहे हो जी देखो जी ऑर्गेनिक पे चले जाएं, हम बेड़ा गर्क करें. जी बिल्कुल, हमारा सॉइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ज़राअत के लिए, फॉलोड बाय वाटर एंड एवरीथिंग एल्स. अब हो ये रहा है कि हम जो फर्टिलाइज़र नो डाउट हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लेकिन आप देखें कि जो सॉइल है वो जैसे एक ह्यूमन इंसान का मैदा है ना, उस सॉइल का भी वही काम है. जब इंसान का मैदा ख़राब हो जाता है, आप उसको लाख मल्टीविटामिन्स दे दें, लाख आप उसको देसी खुराकें खिला दें, इंसान मरीज ठीक नहीं होता क्योंकि मैदा ख़राब हो गया है. तो ज़मीन का जो मैदा है वो ख़राब हो गया है. हमारी जो पीएच वैल्यूज़ है, पीएच हमारा 8.5 8.7 हो गया है. किस्सा मुख्तसर, हमें अब जो फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अपटेक नहीं हो रही है. वो ज़मीन में ज़रूर मौजूद है, वो एक बोरी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, पोटैश, नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, वो पौधे को नहीं मिल रही है. हमने ज़मीन में कोई अकाउंट तो नहीं खोलना कि जी हमने इतने टन उसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया है. हमने उस पौधे को वो फर्टिलाइज़र पहुंचाना है. तो जब तक हमारा ऑर्गेनिक मैटर हम नहीं इम्प्रूव करेंगे, वो अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उसकी बेहतरी क्यों आई थी कि ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास मौजूद था. हमने थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र दिया तो वो जैसे दाल को तड़का लगता है, वो फौरन उसका जायका जो है वो तब्दील हो गया और हमारी प्रोडक्शन बेहतर हो गई, अलॉन्ग विद अदर थिंग्स दैट वर. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जो पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन चैलेंजेस आ रहे हैं, आने थे, उससे हमने अपनी आंखें चुराई हुई हैं. आखिरी में आपने एक 18th अमेंडमेंट की बात की थी, गो के डॉक्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया है. मेरा तज्जिया ये है कि प्रोविंसेस वर नॉट रेडी फॉर 18th अमेंडमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ काम होते जल्दबाजी में, हेस्ट में, बगैर प्लानिंग के, बगैर सोचे समझे. तो वो जल्दबाजी में जो हमने तरका बांटा वो इधर तीतर उधर बटेर चला गया. और दूसरी जो एक चीज़ है, जो हम एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात करते हैं, इसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेसी का रोल है, क्योंकि देखें ब्यूरोक्रेसी उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो उसका एक बड़ा कलीदी किरदार है. सियासतदान तो आए गए, एक पार्टी आई दूसरी पार्टी आई, उनका अपना फोकस होता है. जो हमारे सेक्रेटरी हजरात होते हैं, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ सूबों में ज़राअत के और इरिगेशन के, इनकी कम से कम टर्म 3 साल की होनी चाहिए, ताकि वो कोई काम करने के काबिल तो हो, कुछ समझे सिस्टम को, कुछ डिलीवर करने के काबिल हो. साल सवा साल बाद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को उठा के हेल्थ में ले जाते हैं और ट्रांसपोर्ट वाले को इरिगेशन में ले जाते हैं. तो उनको समझने के लिए, बिकॉज दीज आर वेरी टेक्निकल फील्ड्स, तो इसमें भी हमें कुछ सोच विचार करनी है. जब हम मलिक खुदाबख्श भुट्टा साहब की बात करते हैं तो फिर मलिक खुदाबख्श भुट्टा साहब को 1 साल के बाद इधर उधर नहीं कर दिया था. देन ही वाज देयर फॉर अ वाइल, और सारा कुछ जो आज तक हम उस सिस्टम के समरात की बात कर रहे हैं, तो वो इस वजह से. तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी कंटिन्यूटी जो है ना, उनकी एक टर्म मुख्तस होनी चाहिए. 3 साल से पहले उनको कोई ना दाएं बाएं करे. बिल्कुल. ये बिकॉज मैं भी इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली इसका प्रोपोनेंट हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इज द टर्मिनल एंड, इसी ने डिलीवर करना है. यही गवर्नेंस का नाम है और ये हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं डिलीवर करना है. नाउ वी आर एक्चुअली ओवरशॉट द टाइम एंड मैंने दिस इज आई थिंक मैं more than a dozen webinars I have conducted in the last about 6 months or so, and believe you me, this is one of the most important ones I thought. और जो इतनी indulgence speakers की रही है और जो kind of substance you have given us, inshallah we'll formulate a wonderful report on this, very pragmatic, and I will be in touch with you for development of that paper and we'll send it across. Thank you very much for your participation. And may I, before I leave, I would like to, Dr. Zafar Kader is sitting with me on the other side of my laptop. He was the reserve moderator here.
So he was also that something goes wrong with me. So my thank you very much, Dr. Zafar. And thank you, each one of you, Dr. Yusuf Mirza Sahib, Dr. Shujat, Rabia Sultan Saiba, and Dr. Fakan. Thank you very much for being part of this very, very valuable discourse and interaction. Thank you very much. Khuda Hafiz.